So, hello everybody. I Shreya Katyal welcome you all to Some Sunshine. और अभी हमने बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों से बातचीत करी पहले. We were having Fauzia Bakshi, who's the Indian foreign language expert. We had Mr. Mukesh Bhatnagar, who's an amazing social activist and a senior journalist author. Then we had Muhammad Ali, who is ex army officer, Major Muhammad Ali Shah, and he's an actor. Then we had Mr. Dinesh Mohan, who's an amazing actor and model again. And now today I have another very inspirational personality, a women entrepreneur, Miss Pri Rathore, who's the founder of Ambrosia Farms, Jaipur. So welcome, ma'am. Welcome to Sun Sunshine today. Thank you, Shreya, for the lovely introduction. तो हमें पता है कि जो विमेन होती हैं, कहते हैं कि उनको एम्पावरमेंट चाहिए. उनको कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनको एम्पावरमेंट चाहिए, वो वीक है. बट मैं समझती हूँ और जितने भी लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंस्पिरेशन है, वो जानते हैं कि विमेन दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. उनको सिर्फ एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. शी इज अ क्रिएशन विच डजंट need protection but a lot of affection and support. That's it. So आपकी भी कुछ इसी तरीके की जर्नी है कि आपने अपने रास्ते खुद बनाए और कुछ सपने जब टूट भी गए उसके बाद भी आपने खुद को बिखरने नहीं दिया. So I would like you to share your journey and what is the inspirational story? Yeah, sure. Thank you, Shreya, and for the lovely introduction, and feeling glad to share my learnings and experiences with you today. Actually, I started my career as a lecturer. Have done engineering in electronics and communication branch, and continued with my lectureship job after marriage. But later on left when my son came into my life. So when he was 3 years old, I realized that I wanted to do something and realize some raging fire within me, and I needed to channelize it. So I started my customized cake business, but unfortunately I noticed that after 2 years my son diagnosed as a gluten sensitive, celiac, and same time my daughter came into my life, but my son continued face some health issues. So I started research on gluten-free and healthy diets, and parallelly help my husband in his restaurant business. That time I got to know and I discovered mushrooms, and when meeting some daily grocery needs in restaurant. That time I decided to research more on mushroom and mushroom farming, and narrowed down to oyster mushrooms. Then I started and took along my kids and gave training also them on practical knowledge on oyster mushroom cultivation. Okay. Then I chose Ambrosia name because it refers food of God, and it is as God. Pure as love. Ambrosia. Okay. So I was saying that पूरा जो आपका कंसेप्ट है बहुत वेल रिसर्च्ड है, और जैसे कि आपने अपने ब्रांड नेम के बारे में भी बताया, Ambrosia, तो उसका मतलब है द फूड ऑफ गॉड. Food of God. Oh, okay. And second word you said purity and love, right? It is as pure as love. Okay, that's beautiful. तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है कि हम लोग लाइफ में जो भी करें वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की स्टोरी से कनेक्टेड हो, तभी हम शायद उसमें एक्सेल कर पाते हैं और उस चीज़ से अटैच हो पाते हैं. तो मैंने मतलब ये चीज़ इसमें चले एक शेर फरमाते हैं कि अर्ज किया है, मैंने लिखा था ये चीज़ कि जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है. जिंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, मगर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो दर्द पाकर ठान लेते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, और दूसरे वो जो जख्म पाकर प्रण लेते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला वो किसी और को नहीं होने देंगे. So I think whatever kind of bitter experiences we
experience in life, we get in life, we should channelize that energy into something constructive to help and heal the world. And that is what I can see in your story also. हम देख सकते हैं कि हम सभी की जर्नी में कोई ना कोई हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल आता है। तो लोग क्या करते हैं, वो जब कोई रुकावट आती है तो घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट मेरे केस में होता है कि जब कोई रुकावट या अड़चन आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि गॉड टेस्ट ले रहे हैं और अब ये प्रोजेक्ट तो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हर टेस्ट के बाद जो सक्सेस मिलती है, इट्स अ वे ऑफ गॉड टू टेस्ट यू दैट डू यू एक्चुअली डिजर्व दैट सक्सेस। तो अगर कोई रुकावट आती है, मतलब आप सुपर हिट होने जरूर वाले हैं। चलिए, प्रीति जी दोबारा जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, अब आप सुन सकते हैं मुझे? जी, तो अब आपने मुझसे पहले शेयर की थी ये चीज कि आपका जो फार्म था, यू हैव सीन दैट थिंग कि जब आपका ड्रीम ऑन अ वर्ज ऑफ कंप्लीशन था, उसके बाद आपने उसको बिखरते हुए, उसको खराब होते हुए देखा है। दैट फायर स्टोरी, आई वांट यू टू शेयर दैट कि वो क्या हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस था, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस एट दैट टाइम यू फेस्ड, किसने क्या कहा, क्या किया, हु इंस्पायर्ड यू, हु डीमोटिवेटेड यू, एंड व्हाट वाज योर माइंडसेट? एक्चुअली जब हमने फार्म स्टार्ट किया, मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स, मदर इन लॉ, माय सिस्टर एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे एवरी सिंगल स्टेप में सपोर्ट किया। ऑन 5th April 2025 broke out at the farm accidentally, एंड ये ऑलमोस्ट 1.5 के बाद हुआ मैं फार्म स्टार्ट करने के। एंड it was horrific night, definitely, and me and my husband were like we lost our income, but not the knowledge and wisdom we have. Actually हम लोगों का एक्सपीरियंस यही रहा कि इनसे सबके साथ आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप कैसे मूव ऑन कर जाते हैं उनको जस्ट एज अ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स लेके। बिकॉज यूनिवर्स चैलेंजेस देते हैं, बट उनसे रुकना नहीं चाहिए, उनको साथ में लेके मूव ऑन करके उनको जस्ट एज अ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस के साथ और पावर के साथ आगे बढ़ जाना। एग्जैक्टली मैंने बस व्यूअर से अभी यही कहा था कि जब चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं या फिर हम स्टेप बैक करने की सोचते हैं, बट जो कंस्ट्रक्टिव माइंड्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो ना चैलेंजेस जब आते हैं तो ये सोचते हैं अच्छा अब रुकावट आई है तो मतलब गॉड टेस्ट कर रहा है कि जो सक्सेस वो देने वाला है तुम्हें, क्या वो तुम डिजर्व करते हो एक्चुअली या नहीं। तो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी नीड टू कीप। और यहाँ पे मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वेलकम प्रीति जी, और लुकिंग गॉर्जियस। तो आप इनको थैंक्स बोल सकती हैं। So we have Mukesh Bhatnagar ji. We have Fauzia with us also. So she's present here. Hi Fauzia, thanks for connecting. And we have Nitika here. Hi Nitika. I hope all are doing great. So now I would like you to explain something about your concept, like how it is different from the this regular mushrooms. So what is it about and how it is beneficial? किस तरीके से लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और क्या आप सर्व कर रहे हैं बेसिकली? श्योर, एक्चुअली मशरूम फार्मिंग इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हमें अगर कुछ भी करना है लाइफ पे तो वाई पे जरूर वर्क करना चाहिए, रीजन जरूर ढूंढना चाहिए कि हमने ये काम क्यों किया है। तो सिंस चाइल्डहुड तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि एज अ नेचर लवर I wanted to do something for nature without affecting rather work for it and support sustainable ecosystem. In my research I found that mushroom are medicinal mushrooms. Okay. And superfood, full of vitamins, minerals, nutrients, micronutrients, fiber, protein, etc. And there are a number of health benefits for diabetics, osteoporosis, anemic, and high BP problem, arthritis problem. So as per my research, I found that कि इसमें बहुत सारे solutions भी है for major problems like management of agro waste, unemployment, the shortage of land and water, malnutrition and hunger problem. इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग फर्दर पॉइंट पे मशरूम की पॉइंट पे रिसर्च कंटिन्यू की
देन देखा कि जो आज के टाइम पे जो फार्मर्स हैं उनका बहुत बड़ा इशू है मैनेजमेंट करना एग्रो वेस्ट को। तो मोस्टली दे बर्न पराली, पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा इशू होता है। तो जी जी एज अ ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करके they can reuse the agro waste as a substrate, and post harvesting of mushrooms they can again reuse the agro waste, the leftover bags of mushrooms as a mulching. Mulching is the process जो bare land को cover करने के में काम में आती है, and mulching करने से जो कार्बन वैल्यू है लैंड की वो भी इंक्रीज होती है। और फर्दर ऑन हमने ये भी नोटिस किया कि अभी फार्मर्स का बहुत बड़ा इशू है, कार्बन वैल्यू लो होती जा रही है लैंड की, इसलिए इससे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप है वो भी डिक्रीज हो रही है। ओके एंड व्हाट इज yeah, so I was asking what is the best season for these mushrooms and how much time does it take to mature, and what is the kind of environment it needs? कंट्रोल यूनिट पे 365 डेज कर सकते हैं, बट सस्टेनेबल मेथड्स में फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है इन समर सीजन मोस्टली, बिकॉज 3-4 मंथ्स में जब समर पीरियड बहुत पीक पे होता है, देन मशरूम्स एक्चुअली मशरूम वाटर बॉडी है, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करके। कंट्रोल यूनिट थोड़ी रहती है, तो सस्टेनेबल मेथड को फॉलो करते हुए आप 365 डेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है उसमें। एंड थ्रू द ईयर तो शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन इस तरीके से है कि फॉर मशरूम फार्मिंग वी डोंट रिक्वायर लार्ज एरिया, वी कैन स्टार्ट विद 10 by 10 रूम साइज, एंड वर्टिकल फार्मिंग प्रोसेस है तो वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होता है इसमें, तो इट सेव्स मनी टू। सो प्रीति जी, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो हमारे रेगुलर मशरूम्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड, उससे ये वाले जो मशरूम्स हैं वो किस वे में डिफरेंट हैं? वेदर इट्स लाइक न्यूट्रिशन के बारे में तो आपने डेफिनेटली शेयर किया है दैट दे आर मोर nutritious and they help in tackling osteoporosis and many other problems, diabetes in fact, but then other parameters, the taste and the production period and all those things, some highlights about the differences between them. इसमें हमने यही देखा, नोटिस किया कि जो फार्मिंग ऑर्गेनिक मेथड फॉलो करके होते हैं वो हेल्दियर देन अदर मशरूम्स हैं, बिकॉज उसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर द पायनियर मशरूम कल्टीवेशन इन जयपुर, वी डोंट यूज एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड फॉलो सस्टेनेबल मेथड्स ओनली। ओके, सो ऑयस्टर मशरूम, Ganoderma using chemicals. Okay. And taste wise, what is the difference between the taste? Button mushrooms and taste is the because just as flavor रहता है, it depends only according to your cooking recipe. Okay, so can you suggest some of the methods of cooking it and some of the recipes you have tried to the viewers? Yes, we made pasta, pizza, okay, and उसके साथ भी हमने इसे यूज किया, चटनी भी बनती है इनकी सेम, एंड सबके साथ फ्लेवर के साथ डिफरेंट फ्लेवर आते हैं। Okay, so if the viewers want to connect with you and get these mushrooms, then please share your details. How can they approach you? Actually हम लोग अभी Instagram, Facebook, YouTube, सोशल मीडिया पे हैं और हमारी पूरी डिटेल्स है. Anyone can contact us by the name of what are your handles? Ambrosia Farm Jaipur.
Okay, so viewers, if you want to connect to them, you can go on to their social media handles and just message them, whether it's Facebook, Instagram, that is Ambrosia Farm Jaipur. So there's one question also. Okay, so Sushma ji हमारे साथ है, and she's asking why are some people allergic to mushrooms? Can you answer that? Actually, There might be different many body, reasons. Yeah. different body, different way में react करती है. Some are allergic Okay. to some gluten, some mushroom. It totally depends on your body reaction. क्या किस चीज़ की Definitely. allergy. There might be many reasons. I mean, there's so much happening inside our bodies. So you do not know. Some people are allergic to mushrooms. Some are allergic to corn. Some are allergic to some fruits. So that can be answered by only a doctor after testing you. Okay, so these are the contact details, and the name is Ambrosia Farm Jaipur, Food of God. Okay, so yeah. And then Fauziya loves mushrooms, and Fauziya is asking, kindly send some samples, we'll pay for the samples. Definitely, Fauziya, you can just jot down the number here, 9829600720, and contact Preeti ji regarding the same. And I also love mushroom, especially chili mushroom. अच्छा, तो अभी हमने आपकी स्टोरी के बारे में सुना, आपके कंसेप्ट के बारे में सुना, विच इज़ टू अमेजिंग. एंड अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल, what is that inspiration which makes you work for the next thing every day? Like, what is your, mantra to live on life? क्या आपको इंस्पायर करता है कि मुझे और काम क्रिएट करना है? जैसे मेरे केस में ये है कि आई लव टू रीड ह्यूमन बुक्स, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, एंड दैट मेक्स माय वर्क एज अ जर्नलिस्ट अ केक वॉक फॉर मी. सो व्हाट इज योर दैट गोल और मंत्रा इन लाइफ? Actually, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क. So and इंस्पिरेशन यही है कि आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखते रहिए अपने वर्क में. चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, एंड बट आप फर्दर मूव ऑन करते रहें. डेफिनेटली. तो आज के कोड भी तो मैंने आपके लिए यही लिखा है ना, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज हाउ यू हैंडल इट. सो दैट रियली सेज द सेम थिंग अबाउट योर पर्सनालिटी एंड योर जर्नी. आप कुछ अपने स्कूल टाइम के बारे में शेयर करना चाहेंगे? स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, लाइक हाउ इट वाज एंड व्हाट वर योर इंटरेस्ट एट दैट टाइम? So one more thing I want to tell you कि human being born ही solutions problem का solutions करने के लिए हुआ है. डेफिनेटली. एक्चुअली मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे पेन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उसको प्रॉब्लम या पेन लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो उसको चैलेंज और एक्सपीरियंस लेते हैं. तो अगर हम कुछ छोटे छोटे से शब्द अपनी दिमाग की डिक्शनरी में चेंज कर ले, और तो प्रॉब्लम्स, हमें कभी प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं. लाइक इन माय कंसेप्ट, व्हेनेवर समथिंग कम्स, आई नेवर टेक इट एज अ प्रॉब्लम, आई टेक इट एज अ चैलेंज, एन एक्सपीरियंस. तो ये छोटी छोटी अपने साथ आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, अपनी दिमाग की डिक्शनरीज चेंज करनी पड़ेंगी. लाइफ तो सबके लिए वही है, सेम ही है. डेफिनेटली, बिकॉज जैसे कॉइन के टू साइड्स होते हैं, वैसे ही अपनी सराउंडिंग्स में भी टू एनर्जीज होती है. वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं. यस, डेफिनेटली. सो यहाँ सुषमा जी का एक क्वेश्चन है आपके लिए और. सो व्हाट्स द टेरेन रिक्वायर्ड टू ग्रो मशरूम्स? मतलब शी मीन्स टू से व्हाट काइंड ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ लॉन्ग डू वी गेट द यील्ड? Actually, for oyster mushroom cultivation, you can reuse the aggregate as a substrate. And initial investment further, जैसा कि मैंने बताया, अब you can start with 10 by 10 root size. और vertical farming process है तो इसमें water requirement भी ज़्यादा नहीं होती है. And how long do we get the cultivation 20 to 30 days टाइम पीरियड में आपको यील्ड मिलना स्टार्ट हो जाती है, पिन हेड स्टार्ट हो जाते हैं ऑयस्टर मशरूम कल्टिवेशन. एंड सब अलग अलग डिफरेंट मशरूम्स हैं, तो डिफरेंट उनकी साइकिल्स हैं और वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग.
एंड आप ये गाइडेंस एंड ये कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I mean, you train Yes, people for this, actually, right? yeah, the reason is जब फायर इंसिडेंट हुआ हमारे साथ तो नोटिस किया कि we were some other thought process also, notice some farmers problems also. So now we are train people on oyster mushroom cultivation and sell other organic products also, organic groceries and vegetables. बिकॉज हम डायरेक्टली कनेक्ट हुए फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. और देन हमने उनकी चैलेंजेस को नोटिस किया फर्दर के जो फार्मिंग कर रहे हैं उनकी चैलेंजेस लेस हैं कंपैरेटिवली टू जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. तो देन फर्दर हमने ये सीखा ताकि वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं वो ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपने लैंड की किस तरीके से कार्बन वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं. देन ये पूरी सस्टेनेबल. Definitely. So, and she's asking, can we cultivate it on Manesar? Yes, depends upon the land. Actually, ये आप रूम से स्टार्ट कर रहे हैं, 10x10 के रूम से स्टार्ट कर रहे हैं और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पूरा कंट्रोल करके कर रहे हैं. तो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नहीं आती है. जहाँ ह्यूमिडिटी अच्छी है वहाँ पे आप 365 डेज विदाउट एनी इश्यूज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो आप फेस करेंगे क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है. और ये आपसे पूछना चाह रही हैं कि सिंस यू आर स्पेशलाइज्ड प्रीति, so can you develop on a land and share profits? Right now तो अभी I'm saying that I think सुषमा जी आपको इनका ये जो नंबर है इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए और आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप अभी इनको व्हाट्सएप पे पिंग करिए और प्लीज गेट इन टच. So I can see she's very interested in this concept and I would request you Priti to just get in touch with her and just clarify her doubts. तो जहाँ मैं बात कर रही थी प्रीति जी आपसे आपके स्कूल टाइम की और आपके कॉलेज टाइम की, तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ आफ्टर ऑल द योर technical things and getting a lot of knowledge from your side about your concept, the organic mushroom. I want you to know as a person, I want you to know. So please tell me, I want to know about your school time, your college time, your journey as a child. What were your interests and किस तरीके से रहा है सब कुछ? मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है. एक्चुअली मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है. तो मेरी स्कूलिंग सरान की थी, हिमाचल प्रदेश, एंड देन दिल्ली में स्कूलिंग रही, देन जयपुर मूव ऑन किया. आफ्टर दैट मैंने जैसा बताया मैं शुरू से नेचर लवर पर्सन रही हूँ. तो मैंने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया और फर्दर इंजीनियरिंग करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से. नेचर में आपको इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो व्हाई नॉट ज़ूलॉजी और समथिंग लाइक दैट? दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस फार्मिंग बिजनेस. वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर ले इंसान, उसको घूम फिर के उसका इंटरेस्ट खींच ही लेता है. So that kind of thing I can see in many people's journey. कि आप लाइफ में जैसे I have also done BCom honors, but now I'm not handling accounts or something, and I'm just like dealing in my journalism factor and creativity factor more. So when your passion becomes your profession, then work no longer remains work, right? This was really interesting to know you and talk to you and your amazing journey. हमने देखा कि किस तरीके से आपने अपने love for nature को channelize किया, उस एनर्जी को, and then आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ उसको भी आपने कितने कंस्ट्रक्टिव वे में डील किया और वेल रिसर्च अपना एक कंसेप्ट लेके आए आप. और वो कंसेप्ट आने के बाद भी किस तरीके से फायर ब्रेकडाउन हुआ फिर भी आप रुके नहीं, आपने उसको फिर से खड़ा किया एंड उस चैलेंज को भी पेन की तरह नहीं लिया बल्कि उससे भी मोटिवेट हुए और उसमें यू रोज अगेन लाइक अ फीनिक्स, आई मस्ट से. दैट्स रियली ब्यूटीफुल.
एंड लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. So who was the person who really motivated you at that time? Like I want you to share about that person and acknowledge that person basically. Definitely. Actually, my father and my husband both. Recently अभी क्या हुआ कि जब हमने फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें पेरेंटल विलेज में मैंने नोटिस किया एंड आई डिस्कस विद माय फादर. तब उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से फार्मर्स के चैलेंजेस हैं, लाइक फाइनेंशियल, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड लैंड इशूज. फर्दर ऑन इन्हीं को देखते हुए मैंने और आगे फर्दर अब जो स्टेप है वो यही है कि कनेक्ट कर रहे हैं हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उन फार्मर्स. अच्छा प्रीति जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे जब आपका पहले फार्मिंग का कंसेप्ट आपने ये निकाला था तो उस टाइम में और जब आपके फार्म में फायर लग गई थी उस टाइम में, उसके बाद जो आपने फिर से फार्म बनाया, तो वो 2 फेजेस हो गए आपकी लाइफ के. वो तो आपको क्या लगता है कि आपने उस फेज से, उस फायर वाले फेज से क्या सीखा और जो अब आप काम कर रहे हैं उसमें क्या आपने और ज्यादा इनपुट्स दिए? मतलब व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? आई एम श्योर दैट यू हैव बेटर्ड इट एंड आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न सम थिंग्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि हुआ और मुझे क्या और इंक्लूड करना चाहिए अपने कंसेप्ट में. सो वो चीजें क्या थी जो आप अब और ज्यादा लेके चल रहे हैं आफ्टर दैट इंसिडेंट? पहले हम लोगों का यही था कि हम लोग सिर्फ ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के साथ ही जाना चाह रहे थे, लेकिन फायर इंसिडेंट के बाद जब हमने नोटिस किया कि ये बहुत प्रॉब्लम इस तरीके से फार्म के जो चैलेंजेस हैं वो फार्मर्स डेली लाइफ में फेस करते हैं, देन मूव करके हमने डाइवर्सिफाई किया हमारे प्रोडक्ट लिस्ट को एंड फार्मर्स से कनेक्ट किया फॉर ऑर्गेनिक ग्रॉसरीज एंड वेजिटेबल्स. एंड फर्दर ऑन हम लोग को उनके जो चैलेंजेस हैं लाइफ के उनको भी सॉल्व करने का प्लान किया. देन हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और देन ये भी प्रोसेस फर्दर ऑन अब हमारा तभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से जो और फार्मर्स चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ के वो कम. आपसे ये पूछ रही थी कि जो फार्म में फायर लगने की क्या रीजन रहा था और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फार्मर्स वगैरह को सो दैट ऐसे चीजें ना हो, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग. लाइक इतना इन्वेस्टमेंट, इतना रिसर्च वर्क होता है और सब कुछ होता है, तो एक फसल का जलना, एक फार्म का जलना बहुत बड़ी चीज होती है. तो क्या रीजन रहा था और आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए? हमारा जो फार्म है वो चाइनीज लैंटर्न से हुआ था ये एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट. तो जबकि हमने नेबर्स में सबको अवेयर किया हुआ था कि बताया हुआ था कि ये हट फॉर्म में है तो आप यहाँ कोई क्रैकर्स यूज मत करिएगा इस साइड. सेम प्रॉब्लम फार्मर्स के साथ ना हो, उनका यही है कि आसपास कोई भी सराउंडिंग्स में फायर नहीं हो तो वो सही रहेगा. ओके, सो कैन इट बी कल्टिवेटेड इन अ क्लोज्ड एरिया आल्सो और यू नीड ओपन फार्म जोन? क्लोज रूम से ही स्टार्ट करना चाहिए इनिशियली आपको. ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन नो. ओके, इनिशियली जो 20 to 25 है वो डार्क रूम में ही रखना होता है बैग्स को, ऑयस्टर मशरूम या मशरूम बैग. So you can like have a very safe area to cultivate them and avoid such problems. Precautions ये है, hygiene maintain करके रखनी होती है, control unit, humidity and no sunlight. Initially no air. And what is the manpower you require? Like a person can easily do it, right? You don't need much of the staff. For 10 by 10 room size, one helper से आप आराम से कर सकते हैं. और सुपरविजन मतलब कितना चेक रखना पड़ता है एवरी टाइम? लाइक यू नीड टू हाउ मच वाटर डज इट रिक्वायर? एंड 20 to 25 days इतना बस ये कि वो रूम पैक रहना चाहिए, उसमें एयर वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, सनलाइट नहीं आनी चाहिए, तो इनिशियली रिक्वायरमेंट नहीं होती. देन आफ्टर 25 और 30 days रेगुलर बेसिस पे चेक ऑन होना चाहिए कि कोई ग्रीन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड नहीं आए, ड्राइनेस नहीं आए, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे.
एंड जो So पिन हेड्स आए हैं वो फ्रूटिंग प्रॉपर वे में हो एंड व्हाट yeah, Fozia, I hope you got the details and other people can also note the details. Okay, so that's amazing. तो मैं आपकी स्कूल टाइम की जर्नी और कॉलेज जर्नी के बारे में जान चुकी हूँ, आपकी कंसेप्ट के बारे में जान चुकी हूँ, आपसे सीख चुकी हूँ मशरूम फार्मिंग कैसी करनी है, क्यों ऑर्गेनिक मशरूम रेगुलर मशरूम से बेटर है, एंड ऑफ कोर्स अब बस एक चीज बची है जो है कि एक मशरूम की डिश खानी है आपके हाथ से, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. And it was really inspiring talking to you. What message do you want to give to the viewers who are watching us today? मेरा मैसेज यही रहेगा कि डेली बेसिस पे हम लोगों को मदर नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, लाइक कंपोस्टिंग यूजिंग किचन वेस्ट, ट्री प्लांटेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग. Exactly. So I always believe in this thing that if you want to know joy, talk to a flower. वही किसी चीज से हम ये कंसेप्ट भी आता है कि जब हम प्लांट्स के बीच में रहते हैं या उनसे बातें करते हैं या फिर कुछ फार्मिंग करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक एक्सपीरियंस है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता. उसके लिए आपको जाके खुद एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा. सो गो एंड talk to a flower or you cultivate something, love nature, because आप खुद nature हैं, आप इन 5 elements से आए हैं. And these are some details which Preeti ji has shared with us, so you can just note them down and connect to her. And it was really lovely talking to your story, your journey. All the very best to you for all your endeavors, and thanks for connecting us and sprinkling your sunshine on us. And yes, I would like to repeat the quote which I have composed for you. It is that it's not what happens to you, it's how you handle it. So life में जो भी आपकी happenings है उनको अच्छे से handle करिए, आगे बढ़ते जाइए, because life is a walk in the corridors of eternity. So till your last breath, please be constructive, please be productive, and keep on inspiring the world. आज के लिए बस इतना ही. Thank you, Preeti ji. Namaskar. Or thanks to our lovely audience who were connected to us today and shared their blessings on us, their love on us, and was asking so many questions also. So thank you so much, and see you for the next show. Till then, you stay safe at home. Keep inspiring people. घर पे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कुछ ना कुछ करते रहिए. Thank you so much. थैंक See यू you soon. Bye. बाय. थैंक यू फौजिया फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट. प्रीति जी से आप भी कनेक्ट होइए सिंस यू लव मशरूम, एंड आई एम श्योर सुषमा जी आप भी गेट इन टच विद हर. I would like to share her number once again for all you pretty people over there whosoever wants to connect to her. And yeah, so it's Ambrosia Farm Jaipur, 9829600720. I hope you like today's Some Sunshine, and keep on waiting for the next guest who's going to sprinkle his or her sunshine on you. I'm not revealing the name. So till then, bye, take care. I, Shreya Katyal, sign off for the day.
आफ्टर स्प्रे भी प्रॉपर वे में हो।